खुशियों से भरित पाई, चिंता मुक्त ये दिन और रातें, सुख का कोना मेरा बचपन। सखी सहेली खेल खिलौने, पुस्तक कापी टिफिन बस्ता, विद्यालय को नित्य जाती, शिक्षा से सवरा है रास्ता। अम्मा की मैं बिट्टू रानी, बाबा का तो पूरा गुलशन, पढ़ लिख कर मैं बनूंगी अफसर, नाम करूंगी उनका रोशन। मुझको मेरा बचपन प्यारा, प्यारे मुझको मेरे अपने, गुड्डी गुड़िया खेल खिलौने, प्यारे मुझको मेरे सपने। गोदी में ले कहे कहानी, मेरी दादी मौसी नानी, मैं सबकी आंखों का तारा, सुखद सलोने मेरे बचपन। बचपन वाकई मासूमियत और खुशी से भरपूर पल, जब ना कोई जिम्मेदारी होती है ना ही किसी प्रकार का तनाव हर पल घेरे रहता है। आपका हमारा बचपन ऐसा ही रहा है, क्योंकि बचपन में तो ऐसा बीतना ही चाहिए, हंसते खेलते सीखते सिखाते। लेकिन इस तरह का बचपन हमारे सभी बच्चों के नसीब में है? शायद नहीं। हमारी लाखों बच्चियां इन पलों को नहीं जी पाती। उनका बचपन हमारे बचपन की हकीकत से कोसों दूर है। बिल्कुल। Did you know that 1 in every 3 girls who are married in their childhood globally lives in India? Child marriage isn't just a cultural or social issue. It is one of the worst forms of human rights violations, mostly affecting young girls, denying them their right to free choice as well as the right to enjoy their childhood. It isn't just a social evil, it's a crime. लेकिन बदलाव हो रहा है, जमीन पर ये दिख भी रहा है। शिक्षा, जागरूकता, नीतियों में बदलाव, कानून का सख्ती से पालन इस बदलाव को रफ्तार दे रहे हैं। कई पहल बदलाव ला रहे हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एक ऐसी ही पहल है। ये 250 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क है जो देश भर में साल 2022 से काम कर रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि साल 2030 तक देश भर में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर फुल स्टॉप लग जाए। ये कैंपेन उन जिलों में तेजी से काम कर रहा है जहां बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज्यादा है। Remarkably, what started as a grassroots effort has today become a transformative movement that's reshaping the nation's fight against this grave injustice. In a historic milestone in India's fight against child marriage, the Ministry of Women and Child Development has launched a pan-India campaign, Bal Vivah Mukt Bharat, as an effort to combat child marriage. The campaign is expected to reach up to 25 crore citizens for a collective pledge against child marriage. Take a look at this report. With almost 1 in every 5 girls in India being married off before reaching adulthood, the social evil of child marriage needs critical attention. And that is the purpose of the pivotal Bal Vivah Mukt Bharat campaign launched last month in the presence of civil society members, grassroots advocates and government officials at Vigyan Bhavan. The strongest voice for raising awareness against child marriage came from powerful testimonies of young girls from different states like Andhra Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, who shared their personal journeys and struggles. 13 साल की उम्र में शादी होने के बाद फिर जब शादी हुई तो जब मैरिटल रेप था और डोमेस्टिक वायलेंस की हिंसा मैंने खुद सही है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और ये महज एक अभियान नहीं, ये कोई 16 दिनों का 15 दिनों का अभियान नहीं, बल्कि ये निरंतर, जैसे हमने सभी से ये आह्वान भी किया है कि सब लोग हम सब मिलकर ये निरंतर तब तक इसको जारी रखेंगे जब तक बाल विवाह मुक्त भारत ना हो जाए। A key feature of the initiative is the launch of the Child Marriage Free Bharat portal, a platform to raise awareness, report cases and monitor progress. The Bal Vivah Mukt Bharat campaign seeks to engage multiple stakeholders in a collective effort to eliminate child marriage. There are 23.3%
children in India are getting married below the age of 18 years. Today is that day where the tide turns in favor of children, and I hope tomorrow will bring a new era of child protection across the nation. The Bal Vivah Mukt Bharat Abhiyan will focus on districts with a high incidence of child marriage while engaging all stakeholders across the country. The campaign hopes to align itself with Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat by 2047 by addressing states with a high prevalence of child marriage. और आगे बढ़ने से पहले आप सभी यानी कि हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारी इस मुहिम से जुड़े। हम सबको हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है और ये साथ मिलकर काम करने में ही मुमकिन है। आप सभी ndtv.com/childmarriagefreeindia पर लॉगिन कर प्लेज ले सकते हैं ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर लगाम लग सके। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भुवन रिभु, एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक भी हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सरकार की पहल बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को भारत में बाल विवाह के प्रचलन के रोक लगाने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। ऐसे में अब आगे का रोड मैप आपके लिए अब क्या दिखाई दे रहा है? भारत सरकार की बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू करने की पहल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। बाल विवाह कोई भारतीय अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व में व्याप्त है। लेकिन भारत में पहली बार न केवल समाज, न केवल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस पे अहम फैसले आए हैं, बल्कि पूरी सरकार ने इस पे जो कदम उठाया कि हम भारत से बाल विवाह को 2030 से पहले खत्म करके दम लेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में न केवल जागरूकता होगी, न केवल गांव-गांव में लोग इस पे शपथ लेंगे, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये अभियान पहुंच चुका है और पहुंचने वाला है। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में देश के हर गांव में, हर स्कूल में बच्चों के बीच में जागरूकता होगी, अगर हर पंडित, हर मौलाना, हर चर्च का पादरी, हर धर्मगुरु इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगा, अगर हर बैंड वाला, हर हलवाई, हर वो व्यक्ति जो कि समाज में शादी को किसी भी तरह से मदद करता है, वो अगर ये पूछने लगे कि ये बच्चों की उम्र क्या है जिसके लिए मैं ये बैंड देने वाला हूँ, ये घोड़ी देने वाला हूँ। भारत में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है शादी, ये एक समाज का उत्सव है और समाज के इस उत्सव को किसी भी तरह से बच्चियों के बलात्कार का, के जघन्य अपराध का जरिया नहीं बनाया जा सकता। तो समाज इसमें अब आगे बढ़ के आएगा और सरकार ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। सरकार द्वारा शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान न केवल पूरे देश को ये दिशा दे रहा है कि सरकार भी इसमें साथ है, समाज तो आगे बढ़ेगा ही। और कल अगर कोई बच्चा फोन करता है, कल कोई सामाजिक संगठन यदि इसके खिलाफ आवाज उठाता है, कल यदि कोई पंडित, कोई मौलाना साहब ये कहते हैं कि हम ये शादी नहीं करेंगे, तो उसके पीछे कानून का पूरा जोर है। कानून, समाज, सरकार और हम सब बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। आज ये साबित हो गया। Now, Bhuvanji, the Bal Vivah Mukt Bharat campaign, it's built on the foundation of relentless hard work that's been done by various NGOs, your own organization, Just Rights for Children. So now going forward, how do you think you can use civil society as well as other NGOs that are working on this to really amplify this entire campaign and the messaging? Child marriage is an age-old problem, and efforts have been undertaken to solve this crime and solve this human rights abuse in its worst form from at least 200 years. In the last 200 years in India, yes, efforts have been made by various stalwarts. Today we have reached that tipping point where there is a whole of society and a whole of government approach which has come together. This will usher in a new culture, a new era of accountability, a new era of action. This is the tipping point to end child marriage. We are living it right now because for the first time we have scientifically understood that the problem is existing in the worst 330 odd districts, and if we are able to reduce this by 70% in these districts, we will reach the tipping point of ending child marriage, and child marriage prevalence will become 2.9% over the next 5 years. So we have not only
ushered this in through a lot of emotion, through the hard work and efforts by these ladies that you are seeing on the screen, Yes. you know, all around us. These women started this campaign. They actually took the first steps to light this fire, and this spark has become a wildfire not only in India but across the world. It started from India, but in the last 1 month, in 39 countries, people have taken the pledge. Countries like Burkina Faso, Democratic Republic of Congo, countries like Zimbabwe, Zambia, countries whose names sometimes we have not heard, are now looking at India. India has not only become the Vishwa Guru in other things, but this is India's message to the world in the 21st century, that we will end child marriage now through this collective accountability and responsibility. So this is changing as we are speaking. जी बिल्कुल। और भुवन जी, आपके जीवन का भी लक्ष्य रहा कि हमारे देश में बाल विवाह पूरी तरह से रुक जाए, उसकी रोक लगे। और ऐसे में आपकी अपनी जर्नी कैसे रही है अपने लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुंचने में, और जो राष्ट्रीय अभियान अब भारत सरकार का है वो कैसे आपके अपने अभियान से जुड़ रहा है? आज से करीब 12-14 वर्ष पूर्व एक बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक बिटिया की शादी होने वाली है अंडमान में, जिसने पुलिस को कंप्लेंट की है ऑफिशियली कि मुझे शादी से बचाया जाए, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आप तुरंत कार्रवाई कर दीजिए। अब दुर्भाग्य ये था कि भारत का कानून उस वक्त तक ऐसी कोई बेटी जिसकी शादी होने वाली है उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था, कोई कानून में प्रावधान ही नहीं था। पुलिस FIR कब काट सकती है? तब काटेगी जब शादी हो चुकी है। तो अपराध के बाद तो पुलिस का रोल है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए हम सिर्फ माता पिता को समझा सकते थे। सो हमने किया, माता पिता को समझाया गया, पुलिस अधिकारी वहाँ गए, और बहुत ही दुख की बात ये थी कि उस बेटी की शादी उन्होंने अंडमान से निकाल के तमिलनाडु लाए और तमिलनाडु में कर दी 2 महीने बाद। इस बच्ची ने उस पुलिस अधिकारी को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारा होने का कोई फ़ायदा नहीं। वो वहाँ के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा तुम छोड़ दो ये सब जो तुम्हारा ज्ञान है, ये बेकार है। ये जितना भी तुम बाल अधिकारों की सुरक्षा की, कानूनों की बात करते हो, अगर हम उस बच्ची को बचाने में नाकामयाब हो गए तो अब फ़ायदा क्या है? वो बेटी तो फ़ोन करके कह रही है कि कोई तुक नहीं है। इस घटना के कुछ वर्ष के पश्चात भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो निर्भया के कांड के बाद एक पूरा बदलाव आया, पूरे मूलभूत परिवर्तन हुए कानूनों में, उसमें ये एक बदलाव था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। मैंने उसकी ड्राफ्टिंग में सरकार की मदद की थी। तो मैंने तब सरकार को ये सुझाव दिया कि एक ऐसी बेटी जो कि शादी जिसकी होने वाली है, हु इज़ एट इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज, शुड बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको सरकार उसकी सुरक्षा के लिए उसके माता पिता से उसकी कस्टडी ले सकती है। ये कानून में बदलाव हुआ, आज ये बदलाव है। ये 2015-16 की बात है, और शादी अगर कर दी जाए तो माता पिता के ऊपर तभी कानून में बदलाव आया कि ये क्रूरटी माना जाएगा। 2016 में हमने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की कि अगर किसी बच्ची के साथ शादी होने के बाद भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या यौन संबंध स्थापित करता है तो इसे बलात्कार माना जाए, इसको पॉक्सो की श्रेणी में रखा जाए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस पे फैसला दिया। आज भारत में ये IPC की प्रॉपर ऑफेंस है। सेक्शन 63 जो BNS अभी आया है, भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और शादी के भीतर भी होता है तो ये रेप माना जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके हमने कानूनों को बदला। अब उस बेटी को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन भारत की तमाम बेटियां जिनको बचाने की ये मुहिम जारी है और शुरू हुई है, पिछले 1 साल में 2,15,790 बेटियों की शादी हमारे संगठनों ने सरकार की मदद से जाके न केवल रोकी है, बल्कि माता पिता को उसके बारे में जागरूक करा के उनसे अंडरटेकिंग लिखवाई है कि शादी हो गई तो तुम जेल चले जाओगे। इससे समाज में एक नए जागरण, एक नए किस्म के
जो कानून के प्रति रिस्पेक्ट है उसका एक भाव जागृत हो रहा है। तो मुझे लगता है इसी दिशा में आगे हम बढ़ेंगे तो कामयाबी जल्दी मिलेगी। In fact, we want to talk more about that. We've just spoken about how child marriage is one of the worst forms of human rights abuse, robbing children of their childhood, education, health, and freedom. But there are girls whose courage to fight against child marriage, sometimes despite overwhelming opposition, shows that change is possible even in the most difficult circumstances. We just heard from Bhuvanji regarding that. Now, these girls represent hope and resilience in the face of deeply entrenched societal norms. Radha and Preeti, their names have been changed to protect their identity, are among them. This is their story. "14-year-old Radha's marriage was fixed by her father while her mother was staying away from home because of work. Radha tried to resist, but her alcoholic father did not listen and even threatened to poison her food if she refused to marry. Alone and vulnerable, Radha gathered the courage to take charge of her situation. One day, on the pretext of going out to buy groceries, Radha approached the deputy sarpanch of her village and told him about her situation. बच्ची बहुत डरी सहमी हुई थी, रो रही थी फ़ोन पे हमके रो रो कर बहुत बात बताई कि इसी से हम शादी नहीं करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं। हम दोनों आदमी मिलकर के निर्देश को खबर दिए, जो मैडम लोग हैं ये वहाँ से आए, कुछ हमारे जीविका के लोग भी हैं इसमें। Upon receiving this information, the NGO Nirdesh, a partner of Just Rights for Children, swung into action. They took the paperwork and submitted it to the Child Marriage Prohibition Officer of her district. बच्ची अपना आवेदन लिख करके दी जो उसके साथ घटना घटी थी। बच्ची का कहना था जो उसमें हमें ज़बरदस्ती शादी किया जा रहा था और लड़का बहुत उम्र में ज़्यादा था और दिमाग उसके पास नहीं था और वो शादी उसी रात होने वाली थी। तो वो लड़की अपने उप मुखिया के पास जाके बताई कि चाचा हमें बचा लीजिए, हमें शादी जबरन किया जा रहा है। The team from Nirdesh, along with the police, counseled Radha and her family, made them sign an undertaking and stopped her marriage. They also arranged a safe shelter for Radha away from her father. Radha is now back in school and regular follow-ups are done to check her situation. Over 1,000 kilometers to the west from Rajasthan's Tonk emerges another story of grit, of how a 15-year-old Preeti's determination not to get married was supported by a local NGO. It was during Akshay Tritiya, a period considered auspicious for marriages, that Preeti's parents decided to get Preeti and her elder sisters married. One day while returning from school, Preeti came across NGO workers from Seco Dicon, a partner of Just Rights for Children, talking about the ill effects of child marriage at an Anganwadi center. Mustering up courage, Preeti approached the workers and told them about her own situation. तो सिकोन डिकोन संस्था द्वारा जो मैसेज मुझे मिला किरण जी शर्मा के द्वारा, उस पर मैंने संज्ञान लिया। उस स्थिति में मैंने हमारे वार्ड पंच महोदय और वहाँ पे स्थानीय ग्रामीण से संपर्क किया, तो वहाँ पे शादी थी। उसकी सूचना के तहत मैंने मौके पे गया, उनसे बातचीत भी की। चुनौतियाँ बहुत सारी हमारे सामने आई, जैसे कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी उनकी। हमने फिर भी समझा बुझाकर उनको बताया कि जैसे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सोचो एक बार ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, कैसे क्या करोगे। अगर आपकी बच्ची पढ़ लिख जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो कल को उसकी शादी तक वो ही मैनेज कर सकती है। Preeti's marriage was stopped, her education was resumed and her parents were made to sign an undertaking. Survivors like Radha and Preeti not only reclaim their lives but also become powerful voices in the fight against child marriage. It is important that their stories be told as examples of what can be achieved when all of society acts together. If girls are educated and the ecosystems from which they derive their courage are strengthened, more and more Radhas and Preetis will emerge from every corner of the country, taking this fight towards our united goal of ending child marriage in India. बाल विवाह पर रोक लगे, यही है हमारी मुहिम का मकसद। और हमारे साथ भुवन जी लगातार बने हुए, हमने ये कहानियाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपसे भी। आपने एक बड़ी बात कही इस कहानी से पहले कि प्रोसिक्यूशन एक अहम
पहलू हो सकता है इस पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन असम में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इसे समाज ने सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स से भी जोड़कर देखा और तमाम सवाल उठाए। तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर वो कश्मकश अभी भी जारी है। शायद इसलिए क्योंकि हम शायद इम्प्लीमेंटेशन को समझ नहीं पा रहे। सबसे पहला सबसे बुरा यहाँ अपराध क्या है? उस बच्ची जो 12 साल की है उसका यौन शोषण, उसका बलात्कार, उसको बेच दिया जाना, उसको उसकी पूरी तरह से स्वतंत्रता की हानि, उसके सारे मौलिक अधिकारों का हनन। इससे ज्यादा बड़ा अपराध क्या होगा? और इससे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होगा? हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं उसके लिए जो अपराधी है, हम उसकी बात नहीं करते जिसके ऊपर अपराध हुआ है। अगर आसाम में बच्चियों को बचाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए और कानूनी कार्रवाई की, तो जिसको जेल भेजा गया वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक 32 साल का, 35 साल का, 38 साल का आदमी है जो कि 13-14 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है। और इसका नतीजा ये निकला, हमारा एक साथी संगठन है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसकी रिपोर्ट आई अभी 2 साल बाद कि 2021 की तुलना में आसाम में 81% गिरावट आई है बाल विवाह की दर में। आसाम जहां पे धुबरी जैसे जिलों में 55% थी बाल विवाह की दर। बाल विवाह की दर का मतलब है 100 में से 55 लड़कियों की शादी हो जाती थी बाल विवाह की तरह। आज वहां 81% कानून में कमी आई है कानून के अनुपालन से। सरकार ने अभी जो ये कदम उठाया, ये अकेला कदम नहीं है कि सिर्फ कानून का डंडा चलेगा और कुछ नहीं होगा। जहां एक तरफ ये कहा गया कि जो अपराधी है उसे सजा मिले, लेकिन बच्चियों के पुनर्वास के लिए एक नई स्कीम लाए गए। इसके अलावा बच्चियों की शिक्षा के लिए अभी वहां पे एक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू हुई है, जिसमें यह है कि हर बेटी जो कि 8वीं के बाद पढ़ेगी, 14 तक तो हमारे यहाँ भारत में मौलिक अधिकार है, 14 के बाद बच्ची क्या करे? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार जब तक हम नहीं बनाते 18 साल तक, तब तक तो ये लड़ाई चलती रहेगी। तो सरकारों ने उसका एक तरीका निकाला और ये किया कि एक स्कॉलरशिप दे दो, एक स्टाइपेंड दे दो, कंडीशनल कैश ट्रांसफर दे दो, ताकि बेटी स्कूल में लगातार बनी रह सके। तो अभी आसाम में वो भी होने लगा। यदि एक व्यक्ति जो कि शादी में खाना भी खा रहा है, उसको हमने कहा कि तुम अपराधी हो अगर तुम बताते नहीं, तुम अगर रिपोर्ट नहीं करते, और यदि उस व्यक्ति को जो कानून बन चुका उसके ऊपर यदि अनुपालन हो जाए तो हम सवाल उठाएं उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ये कैसा कानून है? हमें कानून का जो रूल ऑफ लॉ है, जो कि एसेंस है सोसाइटी का, उसके लिए हमें पहले रूल ऑफ लॉ भी समझना पड़ेगा। अभी जो भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त अभियान को शुरू किया है, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जो एक स्ट्रैटेजिक बात हम कर रहे थे कि पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन, कैपेसिटी, नॉलेज, इकोसिस्टम, एक शब्द मैंने अभी देखा आप लोगों ने कहा, इकोसिस्टम को पूरी तरह से चैलेंज करते हुए उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है जहां बाल विवाह पनपते हैं। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अर्जेंसी के साथ यदि हम बच्चों को सुरक्षित रखेंगे तभी इसमें होगा। आसाम की हम बात कर रहे हैं, आसाम में तो बाल विवाह की दर में कमी ही इसलिए आई है क्योंकि ये डर पैदा हुआ है। तुलसी रामायण में कहा गया, भय बिन होए न प्रीत। भुवन जी, असम जैसे राज्यों में बाल विवाह के प्रचलन को लेकर रोक लगाने के लिए काम तो हुआ है, लेकिन एक और राज्य है उत्तराखंड, जहां पर यूनिवर्सल सिविल कोड जनवरी में लागू हो जाएगा। इसमें बाल विवाह को रोकने के भी प्रावधान है और यही है अगला मुद्दा चर्चा का। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। धामी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस मुहिम के लिए वक्त निकाला है। पिछले कुछ सालों में बाल विवाह को खत्म करने के लिए आपके राज्य ने क्या क्या रणनीतियां अपनाई? क्या आप कुछ ऐसे कदम बता सकते हैं जो खास तौर से आपके राज्य में सफल रहे? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हमारे राज्य के अंदर बहुत जागरूकता है। भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उन सभी कार्यक्रमों को बहुत ही सक्रियता से क्रियान्वित कराया जाता है। और बाल विवाह के मामले हमारे यहाँ पहले से कम आए हैं क्योंकि सभी शिक्षित लोग हैं, जागरूक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेम विवाह इत्यादि के जो मामले आते हैं उसमें भी हम पूरा संज्ञान लेते हैं। और हमारे पूरे बाल विकास विभाग की टीम लगातार काम करती है, सुपरवाइज़र काम करते हैं, CDPO काम करते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी काम करते हैं। एक बड़ी संख्या हमारी जो है महिला एवं बाल कल्याण विभाग की इसमें लगातार लोगों को जागरूक करती है और कहीं ऐसे मामले आते हैं तो उनका संज्ञान भी हम लेते हैं।
जी धामी जी, सरकार ने पिछले महीने देश भर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया। आपको क्या लगता है कि ये देश व्यापी अभियान किस तरह से आपके ये जो प्रयास हो रहे हैं इसमें मदद करेगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद सभी अभियान बहुत ही समाज को बदलने का काम कर रहे हैं, समाज में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। और भारत सरकार का ये अभियान भी निश्चित रूप से सभी राज्यों को फ़ायदा देगा। हमारे राज्य में भी हम इसका भरपूर उपयोग करेंगे, भरपूर लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी धामी जी, सरकार और जो नागरिक और सामाजिक संगठन हैं, जो उनके बीच का सहयोग है, जो कोलैबोरेशन है, आपके राज्य में बाल विवाह को खत्म करने के लिए कैसे मदद कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ जो बहुत न्यून स्तर पर इस प्रकार की चीज़ें आती हैं, उसको हम लगातार जनसंवाद से आपस में नागरिकों के संगठनों के साथ बात करके उसको ठीक प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं पर भी ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम हैं, बहुत न्यूनता में हैं। और आगे भी हमारा प्रयास होगा कि ये पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त हमारा राज्य बने। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और अपनी रणनीतियां हमारे साथ साझा करने के लिए। भुवन जी, आपने सुना मुख्यमंत्री को, कोशिशें हो रही हैं, सरकार भी लगातार, चाहे वो राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, लगातार लगी हुई है कि इस कुप्रथा पर एक फुल स्टॉप लगे। भुवन जी, आप हमारी इस टेलीथॉन से लगातार जुड़े रहें। देश भर में बाल विवाह के प्रचलन पर रोकथाम के लिए हर कोई प्रतिबद्ध है। आज दिन भर देश के अलग अलग इलाकों में हमारी इस मुहिम से लोग जुड़ रहे हैं, इस पर हम नज़र डालेंगे। लेकिन आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ें। प्लेज लें NDTV.com/childmarriage फ्री इंडिया पर लॉग इन कर। So do log in and do register your pledge there. The fight against child marriage is now India's fight against child marriage, and voices in support of the campaign are growing, from policymakers to the law and from civil society organizations to the public at large. Now, we just heard the Chief Minister of Uttarakhand. As we go into a short break, here are some voices from Parliament. देखिए, बाल विवाह एक ऐसा गुनाह है जो मतलब आपके अधिकार को, आपको उसकी जानकारी होने से पहले आपसे आपके अधिकार छीन लेता है। तो बहुत इसमें हमने बढ़ोतरी पाई है, काफ़ी हद तक बाल विवाह कम हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम सब जब मिलकर काम करेंगे तो हम इसका खात्मा जल्द से जल्द करा पाएंगे। और ये जो मुद्दा है, इसमें विपक्ष हो या सत्ता हो, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए सब लोग एकजुट होकर काम और प्रयास करेंगे। इसमें हमें साथ ही प्रशासन और पुलिस की ज़रूरत है। मुझे लगता है सब लोग इकट्ठे काम करेंगे तो जल्दी हम इसका निस्तारण कर लेंगे। It needs multi-pronged action. It can't be only one single activity that can bring it down. Yes, obviously, educating the parents is very important. Definitely, and also educating the parents and also making sure you follow up with the schools that dropouts won't happen, and making sure enough scholarships are given to their girl children so that they can go and pursue their higher education. And also, this is all the encouragement and education that can be given. But on the other side, we also need to have a stronger laws to make sure that it acts as a deterrent. That if anyone goes ahead with this child marriage, the law can act very fast. If that can be implemented, definitely some sort of a it will definitely go in a right direction. But for that, it can't be one activity. It has to be multiple activities that has to happen. On 27th of November, at the call of Bal Vivah Mukt Bharat, Andhra Pradesh government has taken up this as a gigantic movement within all the centers of Anganwadis, 55,000 of them, and all the schools, covering almost 44,000 schools, encompassing 32 lakhs of students, and remaining parents and then elders of the villages at all the levels, village, mandal, division, as well as district and state levels. Every one of them came together, encompassing almost 7 different departments, and they have taken the pledge that they wouldn't take or encourage the Bal Vivah before the determined age. So the strategy of the AP government would be
involving the local self-government, involving all the departments possible at each level, and then going towards eradication of the child marriage and teenage pregnancy in a span of a year or two. Of course, child marriage, the main problem for girl is the health issue, and that she doesn't get the education, the full education, and also there are a lot of development issues involved in child marriage, and that is why preventive measures are very important and essential to safeguard girls from getting into child marriage. Apart from awareness program, there should be emphasis at each of the schools how about from the very beginning, and also if we can incorporate in the schools about the demerits of child marriage, it will be helpful. Welcome back now to our special show on ending child marriage. We've been talking about the damage this evil does to society. Now that we've set the context of what this campaign has set out to achieve, how do we percolate right down to the root of child marriage, to the families and communities where such decisions are taken? How do we create a ripple effect from the national launch of this campaign down to the states and districts, the Gram Sabhas and Panchayats, the most immediate level of governance, taking the initiative to the grassroots level? Well, to talk more about this and explain and share their experiences, we're now joined by Dr. K.S. Jawahar Reddy, former Chief Secretary to Government of Andhra Pradesh, Manish Sharma, Senior Director, Association for Voluntary Action, and Dr. Benudhar Senapati, CEO, Ruchika Social Service Organization, Bhubaneswar. Thank you so much all for joining us in this program. And Dr. Reddy, I'd like to begin with you. You've actively worked to stop child marriage, including most recently as Chief Secretary of Andhra Pradesh, where you use the law and welfare schemes as deterrents. Could you tell us about some of the strategies that you adopted? Good evening to the program anchors and the participants. In fact, last year, in consultation with UNICEF, we started working on this child marriage issue. So in fact, when UNICEF highlighted that a good number of districts in Andhra Pradesh at that time had child marriages above the national average. So luckily, we had at that point of time 6 lady officers as collectors of the districts and 3 IPS officers, lady IPS officers as superintendents of police. So I constituted a committee consisting of these 6 collectors and 3 SPs. And then they themselves deliberated with all the stakeholders, and they gave a very detailed and comprehensive report, based on which we issued a government order sometime in September 2023. And we started, in fact, the moment we launched this study by this committee of officers, simultaneously we started reviewing this social issue very closely. We used to have video conferences with the collectors once in 15 days. So we had set up some call centers, especially those distress calls which we used to get. So we used to attend to them. In fact, some of the success stories which we have highlighted in the program, we also had our share of success stories where one girl in Kurnool district, who was studying in 10th class, so she was kind of had the threat of getting married. So then the administration intervened, and then we kind of prevailed upon the village community, and everybody prevailed upon the parents, and the marriage was stopped. And I'm happy to share with you that this girl in the KGVB, Kasturiba Vidya Peeth, she topped the intermediate exam in the district level. So we had such success stories in other districts also. So it's not only the law, but also it's more of a community awareness, and the threat of law should be there. Right. So, and then we had a very comprehensive action plan, and what are the steps that we need to take. As the representative of civil society organization was mentioning earlier in the show, that there are a lot of stakeholders, including the priests, the temple management. रेड्डी, आपने रास्ता दिखाया है. अगर मंशा हो तो उसको इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन नहीं है. अब हम कुछ तस्वीरें भी देख लेते हैं, वो तस्वीरें जो इस वक्त ज़रूरी हैं. ये तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, राजगढ़ ज़िले की बच्चियों की हैं जो
प्लेज ले रही हैं बाल विवाह के प्रचलन के खिलाफ। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये जानकारी सामने आई थी कि इस इलाके में बचपन में ही लड़कियों की सगाई कर दी जाती है, कई तो 1-2 साल की उम्र में ही। जानकारी के मुताबिक वहां हर दूसरे बच्चे की सगाई कर दी जाती है और पैरों में उनके चांदी के कड़े पहना दिए जाते हैं ताकि समाज में सबको ये जानकारी मिल जाए कि इस बच्चे की सगाई हो चुकी है। हाल ही में वहां एक शादी के सम्मेलन के बारे में जानकारी मिली, तब अहिंसा नाम की संस्था जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन की एक पार्टनर एनजीओ है वहां पहुंची और पुलिस और दूसरे कार्यकर्ताओं की मदद से वहां से 80 बच्चों को बचाया है। बाल विवाह के मामले में राजगढ़ से मतलब ये मान के चलो कि भारत के सबसे ऊंचे पायदान पर देखा जा रहा है और हर वैवाहिक सीजन में यहाँ पे बाल विवाह की कार्यवाही होती है। जैसे पिछले साल की अगर बात करेंगे तो पिछले 2-3 सालों में 100 से अधिक बाल विवाह रुकवाए थे, 6-7 FIR भी दर्ज कराई थी। और इस वर्ष की बात करें तो विगत 15 दिनों में 24 तारीख से अभी तक लगभग 80 बच्चों का विवाह प्रशासन के साथ मिलकर रुकवाया है। महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग के साथ में हमारी टीम ने, अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी ने रुकवाया है। और हाल ही में हमारा जो 50 गांव में एक अभियान चल रहा है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन का, कि 50 गांव में हम बाल विवाह को लेकर बाल विवाह मुक्त राजगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। महिला बाल विकास पुलिस विभाग का हमें लगातार सहयोग मिलता है और काफी पॉजिटिव सहयोग रहता है उनका, और जैसे हम लोग उनसे मदद मांगते हैं तुरंत वो भी मदद करते हैं और मतलब एक दूसरे का सहयोग से हम लोग काम कर पाते हैं। मनीष जी, आपने ये तस्वीरें देखी, बहुत कुछ ज़मीन पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन क्या जो हमारा राष्ट्रीय अभियान है भारत सरकार का और साथ में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस अब हाल ही में आई हैं, उसका असर ज़मीन पर हो रहा है और ज़्यादा बल मिल रहा है इस तरह की मुहिम को? निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि अभी रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है, आने वाले समय में इसका बहुत ही अच्छा असर देखने को हमें मिलेगा। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग हर चौथाई में 23.3 बच्चियों की शादी हो जाती है बालिग होने से पहले। ये बहुत बड़ी संख्या है। भारत सरकार या मोदी सरकार का जो ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटियां पढ़ेंगी नहीं, उनकी बाल विवाह कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर भारत पे इसका असर देखने को मिलेगा। अभी जो शुरुआत उन्होंने करी है भारत सरकार ने, इसमें पंचायतों को साथ लेकर के वो चल रहे हैं, सिविल सोसाइटीज़ को साथ में लेकर के वो चल रहे हैं, स्कूल्स को लेकर के साथ में चल रहे हैं और प्रशासनिक ताकत इस पर पूरी लगी हुई है। कई राज्यों में इसको हम देख रहे हैं अभी कि राज्य सरकारों ने भी इसको लेकर के एक्शन स्टार्ट किए हुए हैं। और चूँकि अगर बच्चियों का इस तरीके से होगा कि 12वीं तक बच्चियाँ स्कूल नहीं जाएंगी, उनका बड़ा क्लियर कट कॉन्सेप्ट ये आया है, बातचीत जब हमारी हो रही सरकार के कई लोगों से, कई अधिकारियों से, तो ये है कि भाई जो चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी वो लोग कराने वाले हैं। ट्रेनिंग उनकी हो रही है, पंचायतों की जवाबदेही तय हो रही है और इसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या धार्मिक नेता जो लोग हैं या सरकार या इनका जिनका असर होता है समाज में, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ने के साथ वो लोग इस अभियान का शुरुआत किया हुआ है। जी, आपका जो दूसरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, तो देखिए ये तय है कि भारत सरकार और न्यायालय बच्चों के मामले में बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में लगभग 5 ऐसे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं कोर्ट ने कि जिससे पता चलता है कि बच्चों के प्रति उनका कंसर्न है। बिल्कुल। चाइल्ड मैरिज पे जो भी उनका रिसेंटली जो जजमेंट आया 18 अक्टूबर को, उसमें उन्होंने बड़ा साफ साफ कहा है कि भाई आपको जो है सरकारों को एक एक्शन प्लान बनाना है। चाइल्ड मैरिज प्रोविजन ऑफिसर की ट्रेनिंग की वो बात कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि जो है ऐसे जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। खास करके जहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, अब वो ऐसे ज़िले जहाँ पर बाल विवाह की संभावना ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर स्कूली पाठ्यक्रम में बाल विवाह को भी चैप्टर देने की वो बात कर रहे हैं। So very important has to be a whole holistic sort of effort की by बात कर रहे everybody. हैं। और चूंकि कानून का भय भी हो, कानून का इकबाल भी रहे, तो उन्होंने एक्शंस की भी बात कही। तालमेल होकर चल रहा है, जमीन पर काम हो रहा है। डॉक्टर सेनापति मनीष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सेनापति, आप उड़ीसा में जमीन पर काम कर रहे हैं, आप खुद लोगों को ट्रेन करते हैं जो बच्चों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने रिसोर्सेस कैसे स्ट्रेंथन करते हैं? लोकल पुलिस, पंचायत को कैसे जोड़ रहे हैं ताकि वो अपने ही समाज के लोगों को समझाएं कि बाल विवाह गैर कानूनी है, एक कुप्रथा है जो आगे नहीं चल सकती?
Actually, what we did when we started our program, we thought that it is not possible to get the achievement unless we include the district administration, block administration, and the panchayat raj people. So right from the beginning, when we launched the program, we took police in hand, and we also took OCPCR, Odisha State Commission for Protection of the Child Rights, with us, and district PUs and district collectors and all the district administration, the people involved in the district administration and Panchayat Raj authorities. So we took everyone with us, so that when we started the work, it was easier for us to achieve. Because now, if you see in all the villages where we are working, and probably in almost 25 districts, the NGOs were working with Just Rights for Children. भुवन जी जो अभी बात कर रहे थे, उनका साथ जो मिलके हम काम कर रहे हैं, वो जगह पे we all work together with the district administration. That is part one. Now, part two is that we also give training to VLCPCs, to block child protection committees, to DLCPCs, MPOs, and all the PRI members, all the people who are involved to stop child marriage, that we are working. So see, in a span of 6 months, I will give you a figure of 1,211 marriages we have stopped in 4 villages. In a single organization has been done this, and there are many other organizations are also working in the field, and they must have stopped more than 5,000-6,000 marriages within this period. So this is the way we have planned that. And when we are working, we also see that डॉक्टर सेनापति, तो आप मंशा हो, आपने वो कर दिखाया। अगर मंशा है कि अपने लक्ष्य को पाना है, आप वो काम जमीन पर कर रहे हैं, और एक बड़ी बात है घर की। Yeah, absolutely, and the importance of the civil society groups also working with government, with the community, with society. Dr. Reddy, coming to you again as a career bureaucrat. Now, you've served in every administrative position, from being a sub-collector to chief secretary. How do you think we can percolate down to the root of child marriage? And if you could also share with us the kind of changes that you've seen on the ground since you began in 1990. Thank you. I mean, this one, I think the action lies at the village level. I think we need to really work with the village level organizations, and let it be a panchayat or the school committees, and more importantly, the women's self-help groups. So if you work with these three, in fact, in Andhra Pradesh, we got a very robust village secretariat system. So we've got functionaries, almost 10 functionaries working. So one point would be that we need to have the data of all these girls who are in the adolescent age group. So especially those who are out of school girls. So unless I think we capture the data and see what's happening to them, so there should be a society monitoring and the village level administration monitoring this aspect. Then I think we'll be able to crack. Another point is that whoever are out of school, I think they should be brought back in the form of bridge courses, or taking them supplementary exams, getting back to the schooling system. Another important point is that we are talking about 18 years. So I personally feel that the plus two courses, that is intermediate courses, should be available to all the girls, very much in the vicinity of their village. It may not be possible to start a junior college in each panchayat, but very much available in the vicinity, maybe 5 kilometer, 10 kilometer radius with good road connectivity. The roads can be laid under आप कह रहे हैं डॉक्टर रेड्डी कि सरकारी तंत्र के साथ साथ जब कम्युनिटीज और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम करें तो सब कुछ मुमकिन है, और बाल विवाह मुक्त भारत का जो ये अभियान है वो भी मुमकिन है, और आपने वो करके दिखाया है अपने कार्यकाल में। Now we'd like to go back to Dr. Senapati and ask you about the campaign that's been announced by the ministry, and how do you think that this campaign will help you address specific challenges that you face in your fight against child marriage? See, the campaign was actually meant to reach to the people in ground level,
to the students in the schools and the colleges, to the common people in the villages, to the women. So that was the main that it's a child marriage is there is a criminal law, and the child marriage has to be stopped. That message has to go, and the people need to place for Bal Vivah Mukt Bharat. So that is the objective of Government of India. And we even before that, we had started the same thing in 2023. So that all the people from ground level, they placed, almost 10 lakhs people placed for Bal Vivah Mukt Bharat in 2023. That we could able to, in 3 districts, we are working in 3 districts. सेनापति जी, इस वक्त एक और अहम मुद्दा भी है, मनीष जी से मैं पूछना चाहूंगी। मनीष जी, आपको क्या लगता है वो कौन से कदम इस वक्त बेहद ज़रूरी हैं जो फिल्टर होके ग्रास रूट पर पहुंचे और हमारा देश बाल विवाह मुक्त हो जाए? 2 ज़रूरी कदम आप गिना पाएं तो। देखिए, एक तो कानून का डर पैदा जरूर होना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि हम तो बाल विवाह करेंगे और कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, अभी सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट राजस्थान का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हम और आप सब जानते हैं कि राजस्थान में खासकर अक्षय तृतीया पर बहुत बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। इस बार अक्षय तृतीया के पहले जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया कि यहाँ पर बाल विवाह अगर होता है तो पंचायतों की जवाबदेही तय की जाएगी। डेटा ये कहते हैं कि इस साल कहीं भी ऐसे बाल विवाह के मामले नहीं आए। इक्का दुक्का आए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पर जिस तरीके से पहले आते थे तो कानून का एक डर पैदा हुआ, जवाबदेही तय करने की बात मैं कर रहा था। दूसरा, ऐसे परिवार जहाँ संभावना है कि ये बाल विवाह में जा सकते हैं। देखिए, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, हमारे देश के कानून बहुत अच्छे हैं। उन सरकारी स्कीम से उस परिवार को जोड़ कर रखना बेहद ज़रूरी है। इसमें पंचायत का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसमें स्कूल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कोई बच्चा बच्ची अगर पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है तो कम से कम टीचर को पता हो, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को पता हो, या पंचायत को तो पता हो कि भाई कहीं इसकी चाइल्ड मैरिज तो नहीं होगी। और अगर बच्चे को, मैं तीसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि 12वीं तक के बच्चों को सरकार से मैं निवेदन करूँगा, क्योंकि संवेदनशील सरकार है, 12वीं तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी जाए तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ बाल विवाह, क्योंकि बच्चा या तो बाल विवाह में जाएगा या बाल मजदूरी में जाएगा या उसकी ट्रैफिकिंग होगी, तो स्कूल में रहना उसका बेहद ज़रूरी है। और सबका साथ तो चूँकि उसमें कह ही रहे हैं वो, भारत सरकार की भी कोशिश है और उन्होंने इस पर जो है कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिए हैं कि कम्युनिटी के सभी लोगों को साथ में लेकर के चलना है। और पंचायतों का रोल उन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक कर दिया उसमें। तो मुझे लगता है अगर एक कदम हम सब लोग मिलकर के उठाएंगे, पंचायत, स्कूल्स, सिविल सोसाइटी, धार्मिक समूह जितने भी हैं, तो निश्चित तौर पे हम बहुत जल्द भारत से बाल विवाह का खात्मा देखेंगे। That's an important point you made, that for children to continue till class 12, and if the government could make that mandatory. We don't know when that will happen, but I'm glad you spoke about it on our program here. I'd like to thank all our guests, Manish ji, Dr. Senapati, Dr. Reddy, for joining us on this very, very important show, on this very important issue. And another reminder to all our viewers that you can go to ndtv.com/Child Marriage Free India and become a part of this national campaign against child marriage. You only have to pledge to report, stop and advocate against and end child marriage. Yours will be amongst the many voices that are joining this campaign. As we go into a break, here is one such voice. Any company, any corporate, any private equity fund, I think it is our imperative duty to make the society in which we live in better. We can't just be focused on profits. And Everstone, through Everstone Foundation and the Viva Foundation that I run, are very focused on women empowerment, because we believe that the country's growth is intrinsically linked to the women in the country doing better. And I think the impact that we can have as corporates coming together and taking up causes such as child marriage will have the mass effect that this issue requires. I think coming together and having a bigger impact together quicker is what's going to help get rid of this
fights this social evil that we have in the country. आप देख रहे हैं एनडीटीवी का खास अभियान बाल विवाह मुक्त भारत। लेकिन सवाल है कि कैसे राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान हर जिले तक पहुंचे, हर गांव तक पहुंचे जहां हमारे बच्चे बाल विवाह जैसी कुप्रथा के शिकार हो रहे हैं। तो क्या कदम होने चाहिए, क्या रणनीति रहेगी दूसरे इलाकों से जहां से हम सीख सकें? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल है। सोलेदाद हरेरो हैं, चीफ ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिसेफ इंडिया के, रविकांत नेशनल कन्वीनर है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के, ऋषिकांत है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद एक खास मेहमान, एक्टर एंड प्रोड्यूसर गुल पनाग, जो इस मुहिम से अब जुड़ रही हैं। गुल, पहला सवाल तो आपसे ही कि आप कई सामाजिक मुद्दों से जुड़ती रही हैं, खुलकर आपने जेंडर इक्वालिटी पर, एनवायरनमेंट पर बात की है। चाइल्ड मैरिज से इस मुहिम से आप जुड़ रही हैं, क्यों ज़रूरी लगा कि आपको इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी एनडीटीवी को कि उन्होंने इस अभियान को इस स्तर पे लाने का एक इतना बड़ा कदम उठाया है। मैं अभी बात कर रही थी सर से, और एक जागरूक नागरिक होने के बावजूद मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं थी कि 23% के लगभग 23% महिलाओं ने बाल विवाह अपने बारे में रिपोर्ट किया। यानी 23% महिलाएं हैं जिनकी चाइल्ड मैरिज हुई है आज की तारीख में। मतलब आज हम चांद पे पहुंच चुके हैं। आज हमारे देश में हमारी युवा पीढ़ी क्या क्या नहीं कर रही, लेकिन ये भी आज हमारी एक सच्चाई है, और इस सच्चाई से सबसे पहले तो हमें सामना करना पड़ेगा। और जब हम इस सच्चाई से सामना कर पाएंगे तभी हम इसके बारे में कुछ कर पाएंगे। मैं एनडीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मुहिम से जोड़ने का ये आमंत्रण दिया, और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे अपना पब्लिक प्लेटफॉर्म यूज़ करने का मौका मिल रहा है इस मुहिम के ज़रिए, इस अभियान के ज़रिए अपनी आवाज़ उठाने का। No, thank you for coming here and being a part of this campaign as well in this program, because we need more and more people from civil society, celebrities, actors, all to come together and really become a voice for this campaign. So Gul, tell us a bit about your NGO, the Colonel Shamsher Singh Foundation, and also how do you think civil society NGOs can help in this campaign to rid India of this evil of child marriage? Gargi, I think the first step to any change in society is discussion, debate and dialogue. If we don't discuss something, if we don't debate it, if we don't address it, we can't move beyond it. One of the things we facilitate at the Colonel Shamsher Singh Foundation is conversations, especially in the gender equality ecosystem. I come from a district in Punjab that had the dubious distinction of having the lowest sex ratio in the previous census. And that was the trigger for me to set up this foundation. My grandfather was a social worker after he retired from the army and spent 20 years as a sarpanch of his village, because that is the level at which you can really make an impact. And when I found out that my district, where I hail from as a 21st century woman who is literally doing everything she's ever wanted to do, by accident of birth, I'm enjoying the privilege of pursuing all my dreams. Had I been born somewhere else, शायद मेरी ज़िंदगी बहुत ही अलग मोड़ ले सकती थी। तो ये ट्रिगर था, और हम एक छोटे स्तर पे कैसे तब्दीली ला सकते हैं। जब आप जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो पहले आपको उसे एड्रेस करना है कि जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर हम इसे एड्रेस ही नहीं करेंगे, ये तो है ही नहीं, सब कुछ सब बढ़िया है, फिर हम उस मकाम से आगे नहीं पहुंच सकते। So what we try and do is we facilitate conversations, we bring empowered women face to face with communities to show them that women can also be pillars of the family. But to come to what you just spoke about, I think as a conscious citizen, as a contributory citizen, it's very, very important for us to use our platforms and use our spheres of influence to be able to reach as many people as we can. हर इंसान, मैं मानती हूँ, समाज में एक इन्फ्लुएंसर है। शायद उनका इन्फ्लुएंसर उनकी नुक्कड़ तक है, शायद उनका इन्फ्लुएंस उनकी सोसाइटी में है, पर सब का एक ना एक इन्फ्लुएंस
सर्कल होता है और उस इन्फ्लुएंस सर्कल में हमें हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर हम ऐसी प्रथाओं के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, हमारे डे टू डे कॉन्टैक्ट में ऐसे बहुत से लोग आते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। मेरी मुलाकात हुई एक लेडी से जो हमारी सोसाइटी में हाउसकीपिंग का काम करती हैं, और वो मुझे बता रही थी कि मैं अपनी बेटी से बहुत तंग आ गई हूँ, मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैंने पूछा उनकी उम्र क्या है? 15 साल। मैंने कहा आपको पता है कि एक प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस एक्ट है, मतलब वकालत मैंने भी की तो मुझे एटलीस्ट टर्म मालूम था उसका। तो शी सेड ओह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमारी बेटी को निकाल के, मतलब हम उसकी प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, जो सामाजिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर एक बेटी पैदा करने के नाते ठोस दी गई है, हम उसे खत्म करना चाहते हैं। अब जब तक हम ये मसला एड्रेस नहीं करेंगे, महिलाएं ही तो विक्टिम है चाइल्ड मैरिजेस का, लड़के विक्टिम नहीं होते unless I am mistaken. Also, but women more so, girls more so. The idea really is that women are, unfortunately, girls are seen as a burden on the family. And I think the Honorable Prime Minister's बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन जो है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे आंदोलन, ऐसे अभियान जो हम कर रहे हैं, उन्हें हमें ग्रास रूट्स तक लेकर जाना है। कुल हमारे टेलीथॉन का मकसद भी यही है कि जागरूकता, अवेयरनेस हो और लोगों तक ये बात पहुंचे कि वो जो कर रहे हैं, जिस प्रथा को वो फॉलो कर रहे हैं, वो एक कुप्रथा है, उसका प्रचलन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए एक प्लेज कैंपेन भी लगातार हमारे टेलीथॉन के साथ चल रहा है। बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन एक राष्ट्रीय अभियान है। हम चाहते हैं कि आप भी प्लेज करें ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लगे। dtv.com/childmarriage फ्री इंडिया पर लॉग इन कर आप ये प्लेज ले सकते हैं। मुहिम के समर्थन की बात करें तो हमारी बच्चियाँ, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज से जुड़े लोग, स्कूल टीचर, पंचायत के सदस्य, गाँव शहर के आम लोग सब जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में प्लेज लेने के लिए। बाल विवाह मुक्त भारत के लिए सब साथ हैं, सरकार की मुहिम के साथ हैं जिसकी नींव रखी है Just and I like what Gul said about each person being an influencer in their own sphere, and I think that's something that everyone should keep in mind as well. आज क्या हो रहा है गुल, आप पूछ रही थी ना, हम चलते हैं सीधे राजगढ़ जहां हमारे सहयोगी अजय शर्मा मौजूद हैं अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी के कार्यक्रम में। अजय, पहले तो बताएं कि इस वक्त वहां हो क्या रहा है। देखिए, तमाम जितने भी यहाँ पे जागरूकता रैली निकाल रहे हैं, जो भी स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, मशाल जुलूस निकाला है बड़े पैमाने पर। यहाँ पर पूरे जैतपुरा जो राजगढ़ के पास का गांव है, जो सबसे ज़्यादा बाल विवाह के लिए पहचाना जाता है, इन सब के दरवाज़ों पर ये तमाम स्वयंसेवी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता जो हैं वो डोर टू डोर ना सिर्फ दस्तक देते हैं, बल्कि आप देख सकते हैं प्ले कार्ड्स देख सकते हैं। क्या मकसद है, आप क्या यहाँ पे? सर, हम बाल विवाह को ख़त्म करना चाहते हैं। राजगढ़ ज़िले में छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चों की यहाँ पर सगाई की जाती है और सगाई के बाद 20-20 लाख रुपए का झगड़ा यहाँ पर मांगा जाता है, और ये काफ़ी समाज में यहाँ पर कुप्रथा सी फैली हुई है। और हम बिल्कुल यही चाहेंगे, अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी संस्था से हम हैं, और हम यही चाहेंगे कि राजगढ़ जिला से बाल विवाह जैसी खराब कुप्रथा बंद हो। बस यही निवेदन करना चाहता हूँ राजगढ़ जिला के सभी मेरे ग्रामवासियों से कि बाल विवाह खत्म होना चाहिए। अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी आप सभी के साथ है। जो कुछ और सोसाइटी अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी के लोग ग्रामीण है, क्या लगता है आपको, गांव में बाल विवाह बहुत ज़्यादा हो रहा है? हाँ सर, बाल विवाह छोटे छोटे 2 साल के बच्चे, 1 साल का बच्चा इधर का इधर थोड़ा सा शराब पी लेते हैं, ऐसे रकम मंगवा लेते हैं, आधा किलो वो 20,000 रुपये ले लेते हैं, 10,000 रुपये ले लेते हैं, ऐसे लालच में आकर ब्याई को दारू पिला देते हैं, ऐसे करते हैं सर। हमारे राजगढ़ जिला में तंवर वार्ड में, पूरे तंवर में ज़्यादा ये काम हो रहा है सर। तो ये निवेदन है कि सर इसको बंद किया जाए बाल विवाह को। कुल बात ये है। आप क्या सोचते हो आज के इस कार्यक्रम? आज के कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं सर, हमारे बहुत परिवर्तन हो गया इसमें आने में। इस जैतपुरा का आपका आभारी है पूरा गांव का। जो नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस रैली में आए हुए हैं और कैंपेन है बाल विवाह के अगेंस्ट, और अहिंसा सोसाइटी से कुछ और मेंबर हैं। क्या है आपका, क्या कहना चाहिए? आप सभी को नमस्ते, मैं निकिता मेवाड़े अहिंसा वेलफेयर सोसाइटी थे। हम तत्पर 50 गांव हमने गोद लिए जिनको बाल विवाह मुक्त बना रहे हैं। हमारा जैसा आज हमने जैतपुरा भी लिया है, उसमें भी सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग यही बोल रहे कि बाल विवाह को खत्म करो और बाल विवाह मुक्त जैतपुरा होना चाहिए हम लोग का। ग्रामीण बच्चियां भी, उनसे बात करूंगा, क्या कहना चाहोगे आप? मैं कहना चाहती हूँ सर कि अपने बाल बच्चा को शादी बंद करो, सगाई बंद करो। कोई नहीं है, और हमारा रोड चाहिए, तुम्हारी निवेदन है सर मेरी, और हमारा रोड चाहिए। और
डिलीवरी होती वक्ता और हमारे रोड नहीं है तो कैसे ले जाऊँ हम हमारे रोड। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस बाल विवाह जो प्रथा चली आ रही है लंबे अरसे से? तो ये तमाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रैली निकली यहाँ पर और रैली निकाल रहे हैं जागरूकता अभियान के तहत। तमाम बच्चियाँ इसमें शामिल हैं, कुछ और बच्चियाँ हैं। क्या कहना चाहोगी आप इस पूरे जो आज रैली निकाली आपने स्पीच दिया, यहाँ बताइए। यहाँ पे आने के लिए आपको थैंक यू। हमारे गांव में एक तो रोड की मतलब सुविधा होना चाहिए और एक बाल विवाह जबरदस्त समस्या है आपके यहाँ की, इसको लेकर क्या? इसको रोकना है। हाँ मतलब हमारे समाज में ज़्यादा ही हो रहा है बाल विवाह, इसको रोकना है सर। इसको बंद करवाओ, जो बाल विवाह हो रहा है ना इसे बंद करवा दीजिए सर। हम लड़कियों के 25 साल तक शादी ना होना चाहिए। ये वो बच्चियां हैं जो खुद अपनी राय बता रही हैं और इसके पहले पूरे गांव में ये मशाल जुलूस निकला है और तमाम बच्चियां, तमाम स्वयंसेवी संस्था के लोग, उनके वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ और भी वॉलंटियर्स हैं जिनसे मैं बात करूंगा। क्या कहना चाहिए? सर ये Alright, I think it's just wonderful to get all those voices from Rajgarh talking about child marriage. समुदाय से अंडरटेकिंग ले रही है, वचन पत्र भरवा रही है। हम चाहते हैं लगातार हमारे प्रयासों से कुछ अच्छा हो, गांव में विकास हो। तो बच्चियां खुद प्लेज लेना चाहती हैं कि बदलाव हो जमीन पर। Absolutely, and that lady in a ghungat, and she's talking about that you won't get our vote if you don't stop child marriage, and just amazing to see everyone come together. We also have with us Soledad Herrero, Chief Chief of Child Protection, UNICEF India. She's joining us from Kerala. Thank you so much, Ms. Herrero, for joining us. Now, the United Nations Sustainable Development Goals call for global action to end child marriage by 2030. What are some of the strategies that UNICEF India has been able to carry out in the past few years to end child marriage in the next 6 years? Could you share some of those strategies which have proved to be especially successful? The first one is the importance of bringing attention at the policy development, at the policy implementation to the adolescent age. Adolescent, which is the second decade of any child, any person, brings an unparalleled opportunity and is also where the gender stereotypes are solidified. So how much attention we put on this second decade of age will yield a lot of opportunities, especially in a context like India with such a huge opportunity in the demographic dividend. The second lesson learned from India and other countries in which UNICEF is working proactively to end child marriage is that the biggest drivers of these harmful practices are education and are poverty. So we really need to support the girls to transition to secondary, to tertiary education, but also to access socioeconomic empowerment opportunities, as well as strengthen social protection schemes and other interventions that really focus on targeting the households of girls that might be experiencing a poverty and marginalization. The last but not least priority and lesson learned is that it is really the prevention and rather than the punitive approaches that allow us to bring the communities on board. राइट। तो प्रिवेंशन की जो शुरुआत होती है वो अवेयरनेस से, जागरूकता से होती है और यही कोशिश है हमारे इस टेलीथॉन की कि जब हम ये टेलीथॉन करें तो देश भर के अलग इलाकों में लोग जुड़ें, प्लेज लें। हमने कुछ देर पहले राजगढ़ की तस्वीरें देखी, अब देश के बाकी इलाकों की भी तस्वीरों पर नज़र डालेंगे जैसे जैसे हम ये बातचीत आगे बढ़ाएंगे, कैसे वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर प्लेज ले रहे हैं। ऋषिकांत जी, हाल के सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस और पार्लियामेंट को जारी हुए हैं और उसका फोकस भी 3 P's पर है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन और प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन आसाम जैसे राज्य में काम कर गया है, इनफैक्ट काम कर रहा है और असम का जो मॉडल है वो एक अच्छा मॉडल अब माना जा रहा है ताकि उसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो रणनीति है वो दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट हो पाए। एग्जैक्टली आसाम का जो आसाम ने किया वो एक पूरे देश को एक तरह से उजागर हुआ कि चाइल्ड मैरिज को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आसाम स्टेट ने हम लोगों के सामने लाया इज द फियर ऑफ द लॉ। और जब फियर ऑफ द लॉ हुआ तो हम लोगों ने इंटायर आसाम में देखा कि किस तरह से केसेस पे केसेस
आने लगे, पुलिस एक्शंस होने लगे, पंचायत के लोग सूचना देने लगे कौन कहाँ चाइल्ड मैरिज कर रहा है। तो फियर ऑफ द लॉ जब आया तो हम लोगों ने आसाम में देखा है कि किस तरह से ग्राउंड रियलिटीज में चेंजेस आई। यंग एडोलेसेंट गर्ल्स कमिंग फॉरवर्ड एंड गिविंग इंफॉर्मेशंस टू द पुलिस ऑफिशियल्स दैट वहां उस गांव में चाइल्ड मैरिज हो रहा है या मेरी दोस्त के साथ चाइल्ड मैरिज हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि आसाम हैज शोन अस द वे हाउ टू फाइट चाइल्ड मैरिज। Interesting you say that, Rishikant ji. Also, another strategy to use in this day and age is technology. So, how can we tap into technology to monitor and to report any child marriage cases? आपने टेक्नोलॉजी की बात किया. You spoke about technology and our mentor, guide and young leader Bhuvan Ribu brought in this book, When Children Have Children. और उन्होंने टेक्नोलॉजी की बात कहा. जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने पिकेट पॉलिसी को सामने लेके आया. जो पिकेट पॉलिसी है, किस तरह से हम लोग फाइट कर सकते हैं. पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कन्वर्जेंस ऑफ डिपार्टमेंट, नॉलेज विद स्टेक होल्डर्स, इकोसिस्टम एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी आएगा हमारे जब हमारे MHA, हमारी MWCD ने पोर्टल बनाया है और पोर्टल में कोई भी व्यक्ति जाके सूचना दे सकता है. एनीबडी who is getting to know that somewhere across the country if a child marriage is happening, they can report directly to the portal. पोर्टल में जाके अपनी सूचना दे सकता है और वो सूचना एक तरह से एनोनिमस रहेगा. मुझे लगता है कि ये एक दूरगामी असर होगा और लोग जब जाके पोर्टल में अपनी सूचना देंगे, एक्शंस होंगे, पुलिस FIR करेगा और वहां पर हम लोग देखेंगे कि बाल विवाह रुकेगा. बिल्कुल. I would like to go across to Ms. Herrero. How can Ms. Herrero, how can collaborations between government and civil society help bring an end to child marriage? What do you think about this? So we were talking about the campaign, and I think very rightly the campaign foundation is that a whole society and a whole government approach is required. It is only by bringing the wide range of the stakeholders. You mentioned civil society organizations, government, but of course there are many other players, religious leaders, academia, the judiciary, including the Supreme Court, has played a very crucial role on this domain, and all huge spectrum of grassroots organizations needs to be on board. Why the partnership of government and civil society is so important? Well, I believe that the government can bring, of course, policies, law implementation, can bring structure, can bring resources and systems, but then the civil society organizations can really make sure that there is a last mile outreach, there is a hands-on expertise based on the reality of the communities, and after all, that there is a touch to the heart and the minds of the communities to trigger a mind shift change in this regard. Yeah. Right. Now, Gul, you had a question, didn't you, for Mr. Ravikant regarding how to combat child marriage and bring about change? Ravikant ji, in India, we simultaneously exist in multiple millennia at one time. We are a very, very diverse nation. What may work in one part of the country may not work in another part of the country. How does one surmount these challenges? You know, there's protection, prevention, prosecution. But even that, the Assam example, how does one make it uniform across all the country? How do you deal with different areas differently? I mean, is there a strategy in place? देखिए, यूनिफॉर्मिटी की बात जब आती है, I understand that India is a big country, diverse cultures, diverse religions. And when one size की बात आती है, that is the rule of law. Once Parliament has made the law, Child Marriage Prohibition Act, then it's binding upon everyone. And there is no question that customary law or personal laws will prevail. That is period, that is end. Because once Parliament has decided that young girls will not be married, that is to be enforced everywhere.
What we are asking from the Just Rights for Children is that enforce the law properly across the country. Once the fear of the law comes in, then there will be a ripple effect across society, and then there will be a shortage of child marriages. I am also talking about, आप देखिए कि जो SDG 5.3 अभी यूनिसेफ के हेड बात कर रही थी, SDG 5.3 को एंड करने की जो 2030 तक का जो चैलेंज है उस पर कोई बात नहीं करता है। यूनिसेफ की खुद भी आंकड़े आ रहे थे कि इतने साल लगेंगे, बट आज जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन और बाल विवाह मुक्त भारत जो कि एक मिनिस्ट्री ने अभी जो लॉन्च किया है, इससे आज पूरे कंट्री में ये बात आ रही है कि हम बाल विवाह को ख़त्म कर सकते हैं। और यहीं पर पार्टनरशिप्स, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशंस, डिस्ट्रिक्ट में इकोसिस्टम, सरकार की लोगों की भागीदारी और जो हमारी कानून को रखवाले हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी। अभी हमारे जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के एक पार्टनर ने जो जनहित याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो लैंडमार्क जजमेंट आई है उसमें यह कहा गया है कि जो सरकार के लोग और जो पुलिस प्रशासन के लोग अकाउंटेबल रहेंगे और अगर वो नहीं करेंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। सो व्हाट वी आर आस्किंग इज enforce the law. It's too long young girls have suffered. It's too long, and it's now time to enforce the law. Now, local NGOs often play a pivotal role in preventing child marriages by acting promptly on tip-offs, which can come in any form. This was evident in a case that was reported from Malkheda town in Kalburgi, Karnataka. A child marriage involving a class 10 girl was brought to light during a surprise visit by an education department officer to a residential school in Malkheda town itself. The officer alerted the district child protection officer, who then activated a rescue network that included members of Margdarshi Society, one of the NGO partners of Just Rights for Children. A rescue team then reached the location and successfully stopped the child marriage. Now, while a case was registered against all parties involved in the child marriage, the girl was presented before the Child Welfare Committee and was placed in a government girls' home in Kalburgi until she turns 18. In this case, child marriage case, this is when we stopped. We went to the that venue of the Kalyan Mandap. The bride were escaped. Both the boys and girls were escaped from that Kalyan Mandap because of they have received a phone call from the institute, so where the child was studying. Some of them called that girl and informed that the police are coming to your place. Then we silently stood and among the people and found the boys' mother and girl's father automatically. Then we informed to the DCPO madam and police department. We called them and we took the police station parents, and then only they called to the boy, and boy also came along with the girl to the police station. रविकांत जी, आप चर्चा कर रहे थे किस तरह से एक इम्प्लीमेंटेशन जो है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन एक अहम पड़ाव है, अहम पहलू है इस पूरी मुहिम के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्टिव भी आया है वो एक पिटिशन की कोशिश के बाद आया है। ऐसे में आपको लगता है कि कानून की समझ और कानूनी कार्रवाई समय पर होना एक बड़ा डेटरेंट हो सकता है इस सोशल इविल के लिए? एकदम। और यही चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो एक पूरी तरह से एक एक्शन प्लान है, और ये एक्शन प्लान में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, जो ये निषेध अधिकारी हैं, इनकी अपॉइंटमेंट अक्सर देखा जाता है कि जिले में पता ही नहीं है लोगों को, और साथ में जिले में अगर मान लीजिए कहीं बाल विवाह हो रहा है, इस पे इंजंक्शन ऑर्डर इशू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वहाँ के कोर्ट है वहाँ सुमोटो एक्शन ले सकती है अपने आप पे। जहाँ तक बात होती है सरकारी अधिकारियों का, उनकी जो एक तरह से उदासीनता होती है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वहाँ पर बात की गई है। जिले लेवल कमिटीज़ की बात की गई है। एक पूरी कन्वर्जेंस लाना होगा। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। कस्टम और सोसाइटी के द्वारा यंग गर्ल्स का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? और इसमें जिले लेवल पे, हम राज्य की बात करेंगे, पर जिले लेवल पे एक पूरी कन्वर्जेंस में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, चाइल्ड मैरिज
प्रोहिबिशन ऑफ ऑफिसर्स, बाल कल्याण जो बाल कल्याण समितियां हैं, ये सबको बहुत प्रोएक्टिवली आगे बढ़ करके एक कन्वर्जेंस मॉडल पे काम करने की जरूरत है। राज्य लेवल पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये कमिटीज बननी चाहिए। ये हमारी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन जगह जगह इस पर ये बात करके ये सब चीजों पे काम करेगी। बहुत कामयाबी भी हासिल हुई है जमीन पर आपके इस एक्शन प्लान से। गुल, टेलीथॉन के इस प्लेटफॉर्म से हम गुजारिश करें अपने दर्शकों को कि वो प्लेज ले और जागरूकता इससे फैले। इस प्लेटफॉर्म से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश इस कुप्रथा के लिए देना चाहेंगे? मैं वही बात दोहराना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू रिटरेट कि हम सब हमारे दायरे में इन्फ्लुएंसर्स हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए हर वक्त जब भी हमें मालूम पड़ता है ऐसी एक प्रथा के बारे में, या हमारे दायरे में अगर मालूम पड़ता है, हम किसी को जानते हैं जिसके घर में ऐसा हो रहा है, हमें उन्हें काउंसल करना चाहिए। और जब हम ऐसी एक शपथ लेते हैं, ऐसी एक प्लेज लेते हैं, तो हम भागीदारी रखते हैं इस अभियान में और इस मुहिम में। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब समाज का एक एक नागरिक जागरूक होकर हिस्सेदारी के साथ, भागीदारी के साथ किसी भी मुहिम के साथ जुड़ते हैं, तभी वो मुहिम और वो अभियान सफल हो पाता है। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब जो देखने वाले यहाँ पर हैं उनसे ये अनुरोध है कि जहाँ पर भी उन्हें मौका मिले, जिस भी प्लेटफॉर्म पर, जिस भी मोर्चे पर उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिले, ये मौका मिले, ये अवसर मिले, इस बात की उनको चर्चा करनी चाहिए। और अगर मौका लगे तो काउंसिल भी करना चाहिए और डेफिनेटली दूसरों को कन्विंस करना चाहिए शपथ लेने के लिए, जब आप शपथ ले लेंगे उसके बाद। Absolutely. Thank you so much for that. And you know, an important point that, because people often say, what can we do about this? Such a huge issue. But yes, in their own way, in their own sphere, people can try and make a difference. Thank you so much, Gulpanak, for joining us, and Ravi Kanji, Rishikant ji as well, and Ms. Herrero for joining us on this program. It's time now for us to slip into a quick break as we continue gathering pledges and voices of support from across the country. We will return to some very significant voices who can play a critical role in ending child marriages in India. That's faith leaders. That's after this break. Child marriage should be abolished, and we should really prepare our children, both boys and girls, for a better marriage and eventually to form a good family as an institution. And I would suggest to take the best practices in this field and to apply and to expand to other regions where this practice is still in vigor. Also, the cultural traits, cultural practices, traditions should be analyzed, and only through social awareness and conscientization we can reduce this. इस्लाम बाल विवाह को कतई तौर पर मना करता है। इस्लाम में बाल विवाह की कोई गुंजाइश नहीं है। धर्मगुरु का बाल विवाह को ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल हो सकता है। पहली बात तो यह है कि जो शिक्षाएं हैं शादी के मुतालिक, वो समाज में उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाना चाहिए। लड़के और लड़की का निकाह के लिए बालिग होना और उनकी इजाज़त लेना ये इस्लाम में पहले ज़रूरी है। अगर लड़की से इजाज़त नहीं ली जाती है और उसको ये पता ही नहीं कि निकाह क्या होता है, शादी क्या होती है, शादी के बाद जिम्मेदारियां क्या है उसके ऊपर होने वाली हैं, उस वक्त तक जो है निकाह सही तरीके से वो कायम नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि निकाह को पूरे तौर से नाफिज करने के लिए इस्लाम की इन शिक्षाओं को समाज को बताना चाहिए। दूसरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आज समाज पूरे तौर से एजुकेटेड नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसकी वजह से बाल विवाह की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। तो समाज को एजुकेट करने की ज़रूरत है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो लोग निकाह पढ़ाते हैं, जो लोग निकाह का अमल अंजाम देते हैं, उनको भी चाहिए कि वो जागरूक हों और अपने समाज को इसके लिए बेदारी पैदा करें कि वो इस तरह के बच्चे और बच्चियों को शादी न कराएं जो नाबालिग हैं, छोटे हैं। मैं आप सबसे एक अपील करना चाहता हूँ कि जो छोटी बच्चियों का विवाह बचपन में कर देते हैं, जिसको बाल विवाह कहते हैं, ये पाप है। मेरे धर्म में भी पाप है,
दुनिया के हर धर्म में पाप है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रतिज्ञा करो कि इस देश में एक बच्चे के साथ जो नासमझ हैं उनके साथ बेइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, उनको बनने देंगे, उनको खिलने देंगे। अगर कली को आप निकाल देंगे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर वो फूल बन जाएगी तो वो दुनिया को रोशन कर देगी। तो जो रोशन करने वाली शक्ति है वो हमारे बच्चे हैं, उनको ये समझाने की ज़रूरत है। आप भी प्रतिज्ञा लो, मैंने भी प्रतिज्ञा ली है, पूरे समाज को प्रतिज्ञा दिलवा रहा हूँ कि बच्चे की बचपन में शादी नहीं करेंगे। जब वो अपने समय पे उसका समय है, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से हम उसकी शादी करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। मुझे आशा है कि आप एक धर्मगुरु होने के नाते मेरा संप्रदाय उसको मैं कहूँगा कि इस पर विचार करे और इसका पालन करे। हमने सुना हमारे धर्म गुरुओं को, फेथ लीडर्स को, जो इस सोशल ईवल, इस कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता फैलाने में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। और हम स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे चर्चा, लेकिन चलते सीधे इस वक्त गणेश कुमार जी के पास, जो मेंबर हैं हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के। गणेश कुमार जी, भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन की नींव रखी जा चुकी है। अब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन सरकार के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर, ताकि दूरगामी असर हो और नतीजे मिलें समाज में? हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जब से एस्टेब्लिश हुआ है 2012 से, चाइल्ड मैरिज पे स्पेशली हमारा फोकस है। और जो स्टेट कमीशन है वो बहुत ही इफेक्टिवली इस पे काम कर रहा है। जो स्टेट कमीशन है रेगुलर मॉनिटर कर रहा है, मगर कुछ चैलेंजेस भी हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी स्टेक होल्डर्स मीटिंग हो रही है। इवन हम खुद भी स्वयं मैं खुद भी बल्कि अर्बन स्लम्स में जो रूरल एरियाज है, ग्राम पंचायत हैं, उसमें जाके हमारे मेंबर्स हैं, हमारी चेयरपर्सन हैं, हम खुद जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग्स हो रही है हमारी। और इसका जो एक्ट है इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रेगुलर जो पीपीओज है। मगर थोड़ा सा एक इशू है हरियाणा में, क्या है, डायरेक्ट जैसे सीएफपीओज की बात चल रही है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं उन्हीं को चार्ज दे रखा है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन का। तो वो उनके पास ऑलरेडी पहले ही महिलाओं का जो है डोमेस्टिक वायलेंस है, वीमेंस का है, उनके पास उतना वर्कलोड है। इवन कई बार तो उनके पास प्रोटेक्शन भी नहीं होती, वो अकेली खुद जाके काम करती हैं। कई बार 1-2 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भी हुआ है कि उनको बेचारियों को उनके साथ मारपीट भी हो गया। तो वो काफी एक चैलेंजेबल काम है। हम भी उनके साथ काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी साथ हम उनको अब कर रहे हैं कि डायरेक्शन दे रहे हैं स्टेट कमीशन की तरफ से कि इस पर रेगुलर स्टाफ होना चाहिए। और भी हमारी मॉनिटरिंग्स हैं। इवन कई बार क्या होता था कि कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होती थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। हमने बड़ा इस पे काफी हमने उन पे मॉनिटरिंग के माध्यम से उनको स्ट्रेंथ किया है कि आप जितने भी ईच एंड एवरी केस शुड बी रजिस्टर्ड इन एफआईआर और डीडी एंट्री, ये तो होना चाहिए उसमें। जी। तो आप जो बात कह रहे हैं कि एक राष्ट्रीय कैंपेन का गार्गी असर तभी होगा जब राज्य स्तर पर, जिला के स्तर पर, पंचायत के स्तर पर काम साथ साथ होता रहे। Right, Ganesh ji, thank you so much for joining us on the program. And now we have in studio with us, we have Bhuvan Ribhu, a founder Just Rights for Children, and we are also very pleased to be joined by MC Maricom, a 6-time boxing world champion, Olympic medalist and advocate for women empowerment. Thank you so much for being with us, and you're somebody who's women in the country look up to. You've broken so many stereotypes yourself. You inspire women across the country. So tell us about, and you're very passionate about empowering women. So tell us about why you're so committed to this particular cause. And we've been talking about the evil of child marriage and what it does to society and what it does to our girls. Well, in my suggestion that child marriage is, we all know that is it's not good at all. Child itself, we have to give them freedom. We have to educate them as much as long. Why we are lacking in our country, there are so many reasons.
the empowering women is very less. What I am thinking is, our mindset is different. Many people's mindset is different. Most of the remote places mindset is different, and the rural is different. So these are mindset is different. So in my suggestion, in my idea is, as much as we can give the opportunities, to educate, to bring them, in so many things, so that in our country, even now have seen for the last many years, sports also, it's, so I feel so proud being a woman, being especially being a girl, and being a woman and being a mother. मैरी कॉम, आप लोगों से इस मंच से क्या अपील करना चाहेंगी जब आप इस मुहिम से जुड़ चुकी हैं, बाल विवाह मुक्त भारत? ये जो सोशल ईवल है, ये कैसे हटे? आप क्या चाहती हैं कि लोग क्या करें अपने घरों में, अपने परिवारों में? मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ भगवान से नहीं, अपना पेरेंट्स से, सोसाइटी, कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि हम लोग कितना बैकवर्ड हो चुका है, कितना जैसे कि आगे बढ़ने के लिए लोग एडवांस हो चुका है, और दिस कंट्री, दूसरा कंट्री कितना एडवांस हो चुका है, हमारा कंट्री कितना क्यों एडवांस नहीं हो रहा है अभी तक? ये मुझे लगता है कि तो कि अवेयरनेस बहुत बाकी है, बहुत जो जगह कॉर्नर में पहुंचने के लिए वो बहुत कमी है। तो आज ये इनिशिएटिव, ये चाइल्ड मैरिज फ्री भारत ये करके प्लेटफॉर्म मुझे शामिल, मतलब जी इनवाइट मी ये बहुत अच्छा लगा। कम से कम थोड़ा a little bit ना I can share my thought, आप बोलेंगी तो लोग सुनेंगे, इसलिए जरूरी है कि नहीं सुनेंगे तो शायद आमने सामने थोड़ा फाइट भी हो जाए। Bhuvan ji, if you can talk a bit about this to Mary Kom, how important it is to have women and people that others look up to, the country looks up to have you as ambassadors, as voices for this particular campaign. If you could just, earlier we had Gulpanag as well, and now Mary Kom here. Earlier we had the gentleman from Haryana talking about one particular child marriage prohibition officer who goes to a village and who's assaulted by the villagers for upholding the law, for protecting the rights of children. And maybe what she needed was Mary Kom ji with the, her gloves on. But why does she need only Miss Mary Kom? Each one of us has the power of the law. We are the people. वही gloves हैं. वही gloves हैं. और we have been empowered by the Supreme Court. We have been empowered by the law. वो व्यक्ति जिसको कोई रोक रहा है बच्चे को बचाने से, कानून का अनुपालन करने से, वो तो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का, भारत के संविधान का, भारत के कानून का, भारत के संसद का, सबका अपमान है। उसकी सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जैसे हर बच्चे की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है, और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चाहूँगा कि मैं उनसे भी कहूँ, आप कानून नहीं हैं, आप सरकार हैं, आप जनता हैं, आप सबके रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो अकाउंटेबिलिटी आपकी है। जब आप कहते हैं कि हम जिले में असहाय हैं, तो फिर बच्चों को नहीं बचाया जा सकता। तो ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है अगर भारत को 2047 में विकसित भारत बनना है। अभी मैरी कॉम जी ने कहा हम आगे कैसे जाएंगे, हम देश तरक्की कैसे करेगा। विकसित भारत बनने के लिए जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द वर्क फोर्स है, उसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि बच्चियां क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पा रही, क्योंकि वो शिक्षा से बाहर है,
क्योंकि उनकी शादी हो गई है। बाल विवाह एक ऐसा गंभीर अपराध और एक ऐसा वायलेशन है मानव अधिकारों का, जिसमें एजुकेशन का भी वायलेशन है, जिसमें हेल्थ का भी वायलेशन है, जिसमें प्रोटेक्शन का भी वायलेशन है, जिसमें सारे एसडीजीज का वायलेशन है, जिसमें सारे मौलिक अधिकारों का वायलेशन है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। किसी भी फंडामेंटल राइट को हम नहीं कर सकते एनफोर्स। पूरा संविधान जिसको देख रहा है, जिस बच्चे की सुरक्षा के लिए बना हुआ है, उस बच्चे की सुरक्षा हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोई सरकारी अधिकारी ये नहीं कह सकता कि वो एक चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर गांव में गया, उसको जो है लोगों ने मारा या उसको रोक दिया, क्यों नहीं पूरे गांव के ऊपर कार्रवाई हुई? ये हमारा पहला प्रश्न उठना चाहिए आज। बिल्कुल। और so in fact, taking from that, in this campaign, what next? What is the big focus now? What needs to be done? What needs to be done is that the effort that our children are showing us has to be complemented by the entire society. हमारी बच्चियां आज हमसे ये अपील कर रही हैं, सड़क पे मशाल उठा के, हाथों में तख्ती उठा के, they are telling us that we don't want to get married, help us. अभी सुना राजगढ़ की, वही राजगढ़ की बच्चियां 25 साल से पहले हम शादी नहीं करना चाहते, और ये तो कानून से भी ज्यादा सोच रही हैं, विच इज व्हाट वी वांट। हम चाहते हैं बच्चियां पढ़ें, बच्चियां शिक्षित होने के बाद सरकार में, समाज में भूमिका उनकी एक हो, और वो पार्टिसिपेट करें वर्क फोर्स में, वो काम करना करें, वो सुरक्षित हों शिक्षित होने के बाद। ये नहीं कि आज 18 की हो गई तो 19 में शादी कर दी, 18 में ही कर दी। बच्चियों के सपने, बच्चियों की भविष्य के लिए वो हमें देख रही हैं। The next step is all of us together, we the parents, we the lawyers, we the sports activists, we the civil society activists and sports celebrities, I was going to say, and then I said sports activists, but thanks to Miss Mary Com, she is a sports activist in her own right. We the celebrities, we the cinema people, we the cricketers, we the doctors, we the lawyers, we the judges, we the children, and we the people of India, together we can foresee that the end of child marriage is near. It is right upon us. Together we shall fight and we shall beat this evil. Together we shall protect. One child raped is one child too many. One child abused, one child sold is one child too many. Together we shall fight this evil. Together we shall beat this evil. Together we shall create a world which is for our children just. A world that is just right for our children. A world where Bal Vivaha Mukta Bharat shows the way to a Bal Vivaha Mukta Vishwa. A child marriage free India will create the फुल footsteps. स्टॉप लगे, नहीं तो मैरी कॉम का बॉक्सिंग ग्लव है ही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बाल विवाह के खिलाफ चल रही हमारी मुहिम के लिए संदेश भेजा है, आइए उनको सुन लेते हैं। देखिए, एक तो बाल विवाह रोकने के लिए हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमारा जो महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, उनके द्वारा लगातार इस पर जागरूकता लाने का प्रयास हो रहा है और बहुत अच्छा काम इसमें हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर भी अच्छा काम हुआ अपने छत्तीसगढ़ में, और नारी सशक्तिकरण के लिए भी काफ़ी काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। महतारी बंधन योजना भी उसका एक पार्ट है, जिसमें 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को प्रत्येक महीना उनके खाते में 1000 रुपया भेज रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में भी शिक्षा को स्थानीय बोली भाषा में भी पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा बस्तर और सरगुजा जो जनजातीय बहुल क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में भी शिक्षा का अलग जग रहा है। तो अवेयरनेस लाने का प्रयास शासन की तरफ से चल रहा है। सभी लोग लगे हैं, सरकार के साथ साथ अनेक स्वयंसेवी संस्था हैं, वो भी
बाल विवाह को रोकने के लिए अपने तरफ से जागरूकता लाने का भरपूर प्रयास वो लोग भी कर रहे हैं। So that was the Chhattisgarh Chief Minister, and we're nearing the end of our programming here, but the campaign and the fight continues, and I'd like a final word from you, Mary Kom. Well, see, we are Indian, we are, very strong, and especially our girls are very strong. I never seen girls are weak at all. So from my childhood, I have learned so many things, and this campaign is really means a lot. I am glad and thankful to join this campaign. So please support and for this child campaign. And we're very grateful to have you here and have you as a voice, isn't it, Bhuvanji? Yes. And finally, what next for those watching? What is your message right now? Act, speak up, raise your voice, report to the police. If the police is not acting, report to the national commissions, report to the government portal. Silence is violence. And here, 2 years ago, when no one thought that this was possible, even on NDTV, I have been in debates where people said it will take years and years until 2050, we will not see the end of child marriage. The end of child marriage is here. It is now. We are living it. In our circle and sphere of influence, as was discussed earlier, let us speak up, let us act. There is a very nice couplet by Dushyant Kumar, which I would like to say and end this with, that ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों. This is like very heavy weight, but it can be, this is the time when we can, pick it up. ये जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारों, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारों. कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों. The end of child marriage is here. By 2030, we shall end it, and we shall sit here and say we have done it. For our children, we will say, we will be able to look them in the eye and say, we tried our best and we ended child marriage for each one of you. We will be here together. We'll talk about it. Bhuvan. So that was the call to action by Bhuvanji, and thank you so much, Mary Kom, for being with us, and thank you all the viewers who've joined us. Do go online and do make your pledge against child marriage, and we will continue with our programming, remember, right here on NDTV.